اب گھروں کو چل کر آرام کیا جائے، ماجے نے کہا۔ ہاں یار، ٹھیک ہی کہا تو نے ماجے، راجو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ اگلے دن چھٹی تھی، فقط اسی دن ذرا دیر سے جاگنے کی عیاشی ہو جاتی تھی، مگر اس میں بھی ابا گھر کا کوئی نہ کوئی کام تیار رکھا کرتا تھا، جس میں کبھی دروازے کے آگے ٹوٹی نالی کے گندے پانی کو گھر میں آنے سے روکنا اور اس کے لیے ادھر ادھر سے مٹی ڈھو کر لانا، اور ابا کا اسے گارا بنانا۔ چنے ہوئے پتھروں کو توڑ کر روڑیاں بھی مجھے بنانا پڑتی۔ کہیں سپہر میں جا کر فارغ ہوتا اور موڈ سخت خراب اور چڑچڑا ہو رہا ہوتا۔ آج بھی چھٹی کے روز مجھے ابا نے جگا دیا تھا۔ چلو اے ہڈ حرام دشمن اناج، لمبی تان کر سو رہا ہے ابھی تک۔ ابا کی اصیلی اور گرجدار آواز سنائی تھی۔ سنڈاس ٹوٹ گیا ہے، سارا گند اندر صحن میں آ رہا ہے، اٹھ روڑیاں اور اینٹیں لے کر آ۔ غربت اور تنگ حالی میں ایسا غلیظ کام کرنا پڑتا تو میں اپنی زندگی پر سارا دن لانتے ہی بھیجتا رہتا۔ اینٹیں مجھے 1 کلومیٹر دور تک چل کر ایک زیر تعمیر رہائشی پروجیکٹ سے چرا کر لانا پڑتی۔ پکڑا بھی جاتا مگر میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ اس روز پکڑا گیا۔ چوکیدار مزدوروں نے میری وہ درگت بنائی کہ میں روتا ہوا گھر آیا۔ مجھے خالی ہاتھ دے کر باپ کو میری حالت اور حیثیت قضائی پر رحم آنے کے بجائے غصہ آ گیا اور حسب سابق مجھے لگا مارنے پیٹنے۔ میں جو پہلے ہی چوکیدار مزدوروں سے بری طرح پٹ کر آ رہا تھا، باپ کے ہاتھوں بھی مار کھاتا رہا۔ ہائے سراب کے ابا، یہ کیا ظلم کر رہے ہو بچے پر؟ ایک تو بیچارہ پہلے ہی مار کھا کے آ رہا ہے، اوپر سے تم اس بیچارے پر دم توڑنا شروع ہو گئے۔ اماں درمیان میں آ گئی۔ باپ نے اسے بھی تھننا شروع کر دیا۔ تب ہی اس کے ہاتھ نہ جانے کہاں سے اینٹ کا ایک ٹکڑا آ گیا اور اس نے ماں پر دے مارا۔ میری دہشت سے آنکھیں پھیل گئیں اور اس زور سے چیخا کہ میری آواز ہی پھٹ گئی۔ اینٹ کا ٹکڑا میری ماں کی پیشانی پر لگا اور وہاں سے خون کا جیسے پرنالہ بہہ نکلا۔ وہ گر پڑی۔ راہیلہ اسے سنبھالنے کو لپکی۔ ادھر ابا کا غصہ اتنی جلدی کب ٹھنڈا ہوتا تھا، وہ ادھر ادھر پھر مارنے کے لیے کچھ تلاشنے لگا۔ میں اسی کی جانب جلتی سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک اور روڑا لگ گیا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھکا اور پھر ماں کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا۔ میرا ابا بھی قد آور تھا اور اب میں بھی اس کے برابر پہنچ چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ابا عمر رسیدگی کی وجہ سے تھوڑا جھک گیا تھا اور مجھے دیکھنے کے لیے اسے اپنا سر تھوڑا اونچا کرنا پڑ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنی دکھیاری ماں کی خاطر کہ وہ پتھر لگنے سے پہلے ہی بری طرح زخمی ہو چکی تھی اور مزید ابا کا پھینکا ہوا پتھر اس کی جان نکال سکتا تھا۔ ابا کا روڑے والا ہاتھ میرے ہاتھ میں دبا رہ گیا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہ جانے اس کی کون سی انا نے جوش مارا اور وہ ہمارے غیظ و غضب کے سرخ ہو گیا۔ آنکھوں کے ڈیلے باہر کو ابلے پڑتے محسوس ہونے لگے۔ یہی لگا کہ وہ اب میری جان ہی نکال دے گا۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ، وہ گرایا۔ بس ابا، بہت ہو گیا، میں نے کھڑی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔ غربت کی نحوست اپنی جگہ، لیکن تیرے لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی نے اس گھر کو اور ہم سب کی زندگی کو جہنم بنا ڈالا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑ۔ اس نے میری بات پر کوئی توجہ دیے بغیر دھاڑ مار کر کہا اور ساتھ ہی اسے کھانسی کا ٹھسکا لگ گیا۔ پتھر پھینک دے، اندر اپنی کوٹری میں جا کر بیٹھ جا، میں تیرا ہاتھ چھوڑ دوں گا، میں نے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وقت کے لرزتے بیتتے لمحات جیسے ایک دم تھم چکے تھے۔ اماں زمین پر گری نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہی تھی اور راہیلہ روتے ہوئے اسے سنبھالا دے رہی تھی۔ میرا دھیان اماں کی طرف چلا گیا اور ابا نے اسی دوران ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ میری گرفت سے چھڑا لیا اور پھر وہی پتھر جو اماں کو دوسری بار دے مارنا چاہتا تھا وہ میری طرف اچھال دیا۔ وہ میری کن پٹی پر لگا۔ میرے منہ سے مارے اذیت کے چیخ نکل گئی۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ماں نے کسی طرح نیم مردہ سی کیفیت میں میرا یہ حشر ہوتا دیکھ لیا اور چیخ مار کر اٹھنے اور مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر چکرا کر گر پڑی۔ راہیلہ نے اسے تھاما۔ وہ میرے لیے بھی پریشان تھی۔ میں جو پتھر لگنے کے سبب اپنا سر پکڑے ابھی صحن میں جھوم ہی رہا تھا کہ ابا نے کسی وحشی سانڈ کی طرح مجھے گردن سے دبوچ لیا اور لگا گردن دبانے۔ غربت، اسرت اور تنگ حالی ویسے ہی ایک لعنت ہے، اور اس سے نہ جانے کیسے کیسے جرائم اخلاق سے عاری فعل ہوتے ہیں کہ بس اوقات عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے ابا کو دھکا دیا۔ وہ صرف اس قدر دھکا تھا کہ ابا کو خود سے دور کر سکوں۔ وہ چند قدم پیچھے کو لڑکھڑایا اور پھر سنبھل کر اس نے وہی روڑا اٹھا لیا۔ اب وہ پھر اماں کی جانب جارحانہ انداز میں یہ کہتے ہوئے لپکا، یہ سارا تیرا قصور ہے، تو اسے میرے خلاف ورگلاتی رہی ہے۔ حالانکہ یہ غلط تھا۔ ماں نے تو ہمیشہ مجھے ابا کا احترام کرنے ہی کی نصیحت کی تھی اور جس پر میں عمل بھی کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے دوڑا۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ میں نے اسے جا دبوچا۔ اب تو میری اس 2 بار کی حرکت پر ابا کا پارا اور بھی ہائی ہو گیا اور اس قدر کہ اس کے پورے جسم میں ایک دم تشنج کے جھٹکے لگنے لگے۔ یہ غصے اور تیش کی انتہائی حالت تھی اور پھر ابا گر گیا۔
ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं सका। इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मोहल्ले के डॉक्टर ही ने उसकी मौत की तस्दीक करते हुए यह बताया था। अब्बा को दफना दिया गया। घर में और कुछ नहीं तो सुकून बहुत हो गया। रोज की किलकिल खत्म हुई, जिंदगी ढब पर आ गई। अब पता चला कि गुर्बत में सुकून क्या शय होती है। असल मसला गुर्बत या तंग दस्ती का भी नहीं था, वो तो शुरू से हमारा मुकद्दर थी ही। घर में सुकून कायम था और यूं हमें गुर्बत में तस्कीन मिल रही थी। गुर्बत में खाना जंगी ही असल मनहूसियत होती है। वो रुखसत हुई तो गुर्बत ज्यादा बुरी नहीं लगी। आज़ादी थी और आज़ाद मुआशी थी। घर का बड़ा अब मैं था। बाकी जिंदगी वही लष्टम पष्टम बीती जा रही थी। इसी दौरान मुझ समेत माजे और राजू को हैरत हुई। हम चारों यारों में सलीम काफी दिनों से गायब रहा। जैसा कि मज़कूरा हुआ वो किसी और जगह मिल में काम करता था। कई दिनों बाद वो जाहिर हुआ तो देखा कि हमारा चौथा यार सलीम बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। पहले वो भी हमारी तरह कहीं नौकरी किया करता था। हमारी ही तरह उसका गुजर बसर हुआ करता था, यानी वही मैली कुचैली शर्ट और बोसीदा पतलून, चेहरे पर मलों और फैक्ट्रियों की मखसूस कालिक और थकन। अब एकदम जैसे वो बाबू बन गया था। अबे रे, इस रात राजू के मुंह से बेइख्तियार निकला था। हम भी सलीम की टोर को हैरत भरे फटी फटी आंखों से तके जा रहे थे। नई चमकती दमकती पैंट शर्ट सलीके से बाल बने हुए और इनमें तेल चुपड़ा हुआ, पैरों में नए बूट। यही नहीं, वो आला ब्रांड का सिगरेट पी रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे पहली बार देख रहे हो अपने यार को, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसके अनजानपन में भी एक तफाखुर था। मानो तो पहली बार ही देख रहे हैं तुझे उस्ताद, बिलाखिर राजू बोला और सलीम ने सिगरेट दबी मुट्ठी की चुटकी बजाकर फखरिया मुस्कुराहट से कहा, यह हुई ना बात। देख दौलत की शान, आज तुम्हारे मुंह से उस्ताद बुलवा कर ही छोड़ा। मान गए ना, पर मैं तुम्हारा यार ही हूं। उस्ताद वाली बात अपनी जगह रखना। अबे तेरी तो, मैं और माजा दांत पीसते और ये कहते उससे चिमट गए। उसने भी बाजू फैला लिए। हम चार यार लिपट कर हंसते और कह के लगाने लगे। इस रात सलीम ने हमें अयाशी करवाई। छुट्टी का दिन था, घर देर से लौटने का भी कोई डर नहीं होता था। काम पर अलबत्ता वैसे ही जाता था। पहले अब्बा साथ होते थे, अब अकेला बल्कि नहीं, माजा और राजू भी हमराह होते थे। बाकी सलीम के लिए बता चुका हूं कि वो किसी और मिल में काम करता था। मैं सलीम की बदली हुई टोर का जिक्र कर रहा था। उसने हमें इसी बड़े होटल में मटन कढ़ाई खिलाई, पान सिगरेट तिलवाए, सिनेमा दिखाया, और वो भी थर्ड क्लास में नहीं बल्कि गैलरी में। गोया इस रात हमारा सारा खर्चा सलीम ही ने उठाया था। यूं रात गए हम चार यार एक दूसरे के कांधों पर हाथ डाले लौटे। कासू कसाई का थड़ा आबाद किया। अब हमारी बारी थी, यानी मेरी, माजे और राजू की। सलीम से पूछा कि ये सब कुछ क्या है और इसके पीछे राज क्या है, तो वो बोला, उस्ताद मानो मुझे और फिर तुम तीनों के भी मेरी तरह ऐश होंगे। हम तीनों ने साथ किया, बल्कि बायक जुबान होकर कहा भी, अब थक गए, गुर्बत इफरीत की तरह हमसे चिमट गई है, इसे जान और पीछा छुड़ाना लाजमी है। तो बस मिलाओ मुझसे हाथ और कोई सवाल मत करो, मासिवाय उस्ताद कहने के। सलीम ने हाथ बढ़ाया। हम तीनों ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिए। उस्ताद तो बस नाम ही का हूं मैं, यार वही पुराना ही रहूंगा। वक्त आने से पहले मुझसे कोई सवाल मत पूछना। राजी होते हो तो वादा करो। राजी, हम तीनों बैक वक्त बोले। तो फिर लो, आज से तुम तीनों मेरे शागिर्द। कहते हुए सलीम ने अपनी नई नकोर पतलून की जेब में हाथ डाला और हजार हजार के बड़े नोट तीन तीन करके हम तीनों में बांट दिए। हम हैरत से फैली हुई आंखों के साथ कभी करारे नोटों को और कभी सलीम को देखने लगे। डरो नहीं, ये चोरी या डाके के नहीं है, बस समझो तो तुम्हारे उस्ताद को बड़ा काम मिला है। यार इससे अच्छा होगा कि तू हमें भी काम दिला दे अच्छा सा। ये नोट तू रख ले। ये बात मैंने उससे कही। नोटों की चमक दमक अपनी जगह, मगर मेरा दिल नहीं माना कितनी बड़ी रकम यूं मुफ्त में लूं। जबकि माजा और राजू तो झपट कर वो नोट अपनी फटी पुरानी जेबों में मुंतकिल भी कर चुके थे। सब वैसा ही होगा जैसा तुम लोग चाहोगे मेरे यारो। सलीम ने मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम तीनों ने उस्ताद मान लिया, समझो काम से लग गए। अच्छा, तो फिर हम कल से इस फैक्ट्री वाली नौकरी पर लानत भेजते हैं? राजू बोला, नहीं नहीं अभी नहीं, बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। सवाल नहीं करना बस, क्योंकि मुझे भी आगे सवाल करने से रोका गया है और सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो कहा जाए करते जाओ, बताने की जरूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम होता जाएगा। हम तीनों की उसकी बात पर हैरत हुई, जो ज्यादा देर कायम नहीं रही। हमें आम खाने से मतलब था, यही सलीम भी कर रहा था। अगले दिन मैं, माजा, राजू फैक्ट्री में थे। हम आज जरा लेट हो गए थे और जानते थे कि अधेड़ उम्र सुपरवाइजर परवेज हमेशा की तरह हमारे खूब लत्ते लेगा और फिर ठीक ठाक बेइज्जती करने के बाद हमारी जान छोड़ेगा। हम भी एक किस्म के ढीठ ठहरे, आदि जो हो गए थे। पहुंचे तो बॉयलर ऑपरेटर मुश्ताक, जिससे हमारी खासी दुआ सलाम भी थी,
मगर मजदूर यूनियन के लोग उसे सख्त नापसंद करते थे, क्योंकि उसे फैक्ट्री इंतजामिया का जासूस समझा जाता था। पसंद तो हम भी उसे नहीं करते थे, लेकिन हम जरा डिप्लोमेट पॉलिसी पर यकीन रखते थे, इसलिए इससे ताल्लुकात खुशगवार थे। हमें देखते ही बोला, रे ये तुम तीनों ने अपने सुपरवाइजर परवेज बशीर पर क्या जादू कर दिया है? क्यों, क्या हुआ? मैंने चौंक कर पूछा। सुबह से तुम तीनों ही का पूछे जा रहा है, मुश्ताक बोला। सीधी बात है भाई मुश्ताक, हम आज लेट हो गए हैं और उसकी जुबान बल खाने के लिए बेचैन हो रही होगी। वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है, मुश्ताक बोला। कर तुम जाओ, खुद ही मालूम हो जाएगा। मुझे गैस मेंटेन करनी है। वो ये कहकर अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गया। कोई बात गैर मामूली जरूर है आज, माजिद ने सोचने वाले अंदाज में कहा। कोई गैर मामूली बात नहीं है, वही मामूल की बेइज्जती और नौकरी से निकालने की धमकियां। मैंने बेजारी से कहा और हम तीनों सुपरवाइजर परवेज बशीर के कमरे की जानिब चल दिए। अंदर पहुंचे तो वो कुछ फैक्ट्री मजदूरों के साथ मुंह मारी में लगा हुआ था। हमें देखते ही उसने खिलाफत वक्का हमारा मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। हम हैरत के समंदर में गोताजंद हो गए। न सिर्फ ये, बल्कि उसने हमें एक करीब धरी लोहे की बेंच पर इशारे से बैठने का भी कह दिया। हम तीनों हैरानों परेशान जा बैठे। परवेज बशीर फैक्ट्री मालिक का चमचा कहलाता था। फैक्ट्री वर्कर ख्वाह मर्द औरत या बूढ़े, सबकी तजलील और इस्तेहसाल करना यह अपना फर्ज अव्वलीन समझता था। ऐसे संग दिल और बेहिस आदमी की करम नवाजी पर हम हैरत सदा न होते तो और क्या करते। बहरकैफ उसने वहां मौजूद मजदूरों को डांट डपट कर फारिग किया और फिर हमारी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, चाय मंगवाऊं आप लोगों के लिए? इस काया कल्प पर हम तीनों हक को दक रह गए थे। एक लम्हे को तो हमें यूं लगा जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। माजे ने ही उससे बोलने की इब्तिदा की और कहा, हम मुआफी चाहते हैं, आज हमें कुछ देर। अरे छोड़ो यार, देर सवेर हो ही जाती है, ये भी कोई बात है। परवेज ने हाथ झटक कर हंसते हुए कहा और हमारे लिए चाय मंगवा ली। इसी दौरान राजू होले से बुड़बड़ाया, यारो ये क्या मुआजरा है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं? तुम तीनों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जनाब इकबाल साहब की सिफारिश पर यहां मुलाजमत में रखे गए हो? परवेज ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए हमसे कहा, इकबाल साहब? हम तीनों के मुंह से बैक वक्त बरामद हुआ था। हम उस आदमी से क्या इस नाम ही से ना आशना थे। मुझे यकीन हो चला कि उसे जरूर गलतफहमी हुई है। अभी मैं अपनी सादगी में ये सब उससे कहने ही वाला था कि राजू ने हाजिर दिमागी से काम लिया और मुझसे पहले ही उससे कहा, जी जनाब, हम तो यही समझते थे कि आपको मालूम होगा। अपने यार की बात पर मैं ही नहीं, माजा भी होंठ भींच कर उसकी जानिब देखने लगा। गर्ज के हम चाय पीकर और बड़े ठाठ बाट वाले अंदाज में सुपरवाइजर के कमरे से निकले और सीधा पावर लूम्स वाले सेक्शन का रुख किया और एक दूसरे के साथ हंस हंस कर सरगोशी में कहते रहे कि सुपरवाइजर की गलतफहमी ने आज जान छुड़ा दी। लेकिन न जाने क्यों बावसफ इसके मुझे ऐसा लगता था कि कोई पुरस्कार मामला इस बीच है जरूर। परवेज बशीर जैसे बेहिस और होशियार आदमी से ऐसी खतरनाक किस्म की गलतफहमी की कम से कम मुझे तो बिल्कुल तवक्का नहीं थी। तो फिर ये मामला क्या था आखिर? बहरकैफ हम तीनों कमर तोड़ और जाग फिशाने वाली मुशक्कत करने के लिए अपने सेक्शन में पहुंचे। अपनी अपनी जगह संभाली तो हमें अभी काम किए थोड़ी ही देर हुई होगी कि तीन और लड़के वहां आन धमके और हमसे जगह छोड़ने को कहा। क्यों भाई, यहां तो हम ही काम करते हैं, माजे ने उन्हें घूरा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम यहां काम करेंगे, दूसरा लड़का बोला। मगर क्यों, किसके हुक्म से? हम कहां जाएंगे? राजू ने जवाब में इन्हें आंखें दिखाई तो तीसरे ने मुस्कुरा कर कहा, यारा गुस्सा क्यों करते हो, ये अपने सुपरवाइजर परवेज साहब का हुक्म है, तुम जाकर पूछ सकते हो। हम डर गए कहीं सुपरवाइजर परवेज ने हमें नौकरी से तो निकाल बाहर नहीं किया। चाय वगैरह का हुस्न सलूक क्या खबर इस खबीज ने तंजिया हमारे साथ रवा रखा हो। हम तीनों ने फौरन उसके कमरे का रुख किया। वो फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ था। हमें देखते ही एकदम अलर्ट हो गया, फोन भी मुनकता कर डाला और फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ, कुछ तकलीफ पहुंची है? नहीं जी, तकलीफ क्या पहुंचनी है। वो हम अपने सेक्शन में काम कर रहे थे कि रहमत, बाला और करीम ने आकर हमें उठा दिया काम से। के मेरी बात सुपरवाइजर ने दरमियान ही में काट डाली और मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये मैंने ही उनसे कहा था कि वो तुम तीनों का काम संभालें। लेकिन क्यों सर, क्या हम नौकरी से? राजू ने डरते डरते जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या बात करते हो यार, नौकरी तुम्हारी इसी तरह रहेगी। वो बोला, तुम तीनों ऐसा करो कि सेक्शन डी में चले जाओ। जाओ शाबाश, जाओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है फोन पर। हाँ, कोई तकलीफ वहां हो तो मुझे आकर बता देना। हम तीनों हक्का बक्का उसके कमरे से निकले। सेक्शन डी ऐसा सेक्शन था जहां सुपरवाइजर समेत इंतजामिया के सिफारिशी वर्कर होते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से ये सेक्शन काम के लिए मिलता था, क्योंकि वहां एक तो बराए नाम ही काम होता था और जो होता भी था तो बस ऐसा ही था जैसे गपशप, चंद तारें खींचें, कुछ फाइलें इधर से उधर रखें और छुट्टी।
अबे लंबू, क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? राजू ने सुपरवाइजर के कमरे से बाहर आते हुए कहा और तस्दीकन अपने बाजू में चुटकी भी काट डाली और चीख पड़ा। कोई और मौका होता तो मैं और माजिद उसकी हरकत पर हंस पड़ते, लेकिन हम खुद भी तो हैरान और परेशान थे। ये क्या हो रहा था आखिर आज हमारे साथ? यार मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, मैंने कहा। हो गया परेशान लंबू, माजिद मुझसे बोला। यार माजे परेशानी की बात तो है, राजू मेरी तायद में बोला। परवेज बशीर जैसे संग दिल आदमी से ऐसी करनवाजियां आखिर क्यों? ये नामुमकिन है। ये सब किसी इकबाल की वजह से हुआ है। आखिर यह है कौन? शहमाजा बोला। यार छोड़ो, ज्यादा खुश और हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये ठीक ठाक किस्म की गलतफहमी है। वो कोई और 3 लड़के होंगे जिनकी तगड़ी सिफारिश आई होगी। हमें गली के कुत्ते भी नहीं जानते। चलो कल सब वैसा ही हो जाएगा, आज तो अय्याशी कर लें। हम तीनों सेक्शन डी की जाने पड़ गए। रात को हम हस्बे साबिक चारों यार इकट्ठे हुए। हमने सलीम को आज भी इसी टोर में देखा। नई नकोर प्रिंट शर्ट, चमकते बूट, उंगलियों में अच्छा सिगरेट, गले में तो आज उसके सोने की चेन भी नजर आ रही थी, जिसने हम तीनों की आंखों को ही खीरा कर डाला। इसके चेहरे पर आज अजीब मानी खेज मुस्कुराहट रखसा थी। फिर बातों के दौरान जब राजू ने आज फैक्ट्री में होने वाले सुपरवाइजर परवेज बशीर की हैरान कुन मुलाकात का जिक्र सलीम से किया तो सलीम नहायत बेपरवाह अंदाज में बोला, उसने किसी इकबाल साहब का नाम लिया था? हाँ लिया था, माजा एकदम बोला। मगर ये इकबाल है कौन? हम तो उसे जानते तक नहीं, राजू बोला। हम आज किसी गलत फहमी का फायदा उठा चुके हैं। ये दोनों मानते ही नहीं। मैंने भी लुकमा दिया। ये गलत फहमी नहीं है मेरे यारो। हाँ ध्यान रखो कि इकबाल साहब को आइंदा सिर्फ बाज के नाम से पुकारना है, क्या समझे? सलीम ने इस बार नहायत ही खड़ी हुई संजीदगी से कहा। हम तीनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर उसकी जानिब देखा। माजिद बोला, यार सलीम कुछ हमें भी तो पता चले कि। बस, सलीम ने हाथ खड़ा कर दिया। जो हो रहा है होने दो, तुम मजे करो। अब यही दिन हैं हमारे पास जिन्हें हम इंजॉय कर सकते हैं। आओ। हम चुप हो गए। इस दिन भी सलीम ने हमें अय्याशियां करवाईं। अगले दिन भी फैक्ट्री में हम तीनों के साथ वही सलूक रवा रखा गया। खूब मजे करते रहे। कोई थकन नहीं, कोई सख्त काम नहीं। इधर उधर की गप्पे हाँकते घूमते फिरते, यूं जैसे इंतजामिया के आदमी हों। फखर से दूसरे काम करते लड़कों और वर्करों को देखते, गर्दनें अकड़ाते। अब हमें फैक्ट्री देर सवेर आने की भी कोई परवाह नहीं होती थी। ड्यूटी कार्ड पंच करने से भी मुस्तस्ना हो गए थे। घर को जल्दी लौटाते। ऊपर से सलीम हमें हर 8वें 10वें रोज 1000 2000 नोट भी बांट देता मुफ्त में। फैक्ट्री में हमारी इस नरमी पर एक बड़ी उम्र के लड़के को अलबत्ता मैंने एक तबसरा करते सुना, ये सब सियासी घन चक्कर है भाई। पता नहीं उसने कौन से सियासी घन चक्कर की बात की थी, वो मैं नहीं जान सका। मुमकिन था उसने फैक्ट्री यूनियन के बारे में ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन हमारा तो उनसे कोई मिलता जुलता इलाका भी नहीं था और ना ही कोई खास ताल्लुक था। राजू और माजिद ने हमारे बारे में होने वाले इसके तबसरे पर कोई तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मैं जरूर अंदर से खटक गया था। इस दिन हम हस्बे मामूल फैक्ट्री से जल्द घर लौट आए। अब हम चारों यारों की बैठक भी जल्दी लगती थी। इस वक्त चूंकि दुकानें खुली होती थीं, इसलिए ये बैठक होटल में लगती। घर लौटते तो थके हुए भी नहीं होते, और होते भी क्यों, हमें फैक्ट्री में कोई सख्त काम करना ही नहीं पड़ता था। ऐसी नौकरी तो नसीबों वालों ही की होती थी। हमारे घर वालों को भी हमारी इस बदली हुई ठोर पर बड़ी हैरत होती थी, मगर बकौल माजिद के किसी को इस बारे में कहने की जरूरत ही कहाँ थी कि वो पूछते। उन्हें तो बस हर 10वें दिन नोटों की जरूरत होती, वो इन्हें मिल जाते। हम यही कहते कि ये बोनस मिलता है या कमीशन। बहुत से बहाने थे। मेरी माँ भी खुश थी कि मेरी तरक्की हो गई थी। यही कहा था हमने अपने अपने घर वालों से। लेकिन राहिला मुझे गौर से देखा करती थी। एक दिन उसने पूछ ही लिया,